industry. This market itself is growing by leaps and bounds. Just to name about the LED lighting industry market, which is currently at a $5 billion industry, in 2025 is expected to be about $25 billion in next 8 years from here now. Compounded annual growth rate for this industry is about 19%. Expected was reflected here. At the same time, the Pro Audio industry alone, which is of the size of $12.5 billion in 2025, expected to be about $18 billion. So you can see this is a industry which is a very fast-growing industry, and this is a show where you see a lot of innovative products. It's a meeting place for the manufacturers, dealers, distributors, and also the entire industry platform to do your sourcing. And let us go about what AI, artificial intelligence, also play a role going forward, and what kind of large from participate from local as well as global player, and this whole sector's contribution to India's growth story. So, what I want you all to understand that today, whether it is a classroom, whether it is an airport, whether it is a metro, whether it is your bank, or whether it is a QSR, quick service restaurant, cafe, everything in hospitality, sports, the financial sector, corporate sector, hospitality sector, education sector, everywhere there is AV. Every aspect of the economy is today audiovisual. Trade exhibitions mainly across the whole world. We've had about 600 events similar to this one, from Japan all the way through to Brazil and everything in between. The region I look after is a very fast-growing region. The events scene in Pioneer is very buoyant. We're investing heavily in growth markets, and India is really at the top of the list for us as a company. We recently purchased the Palm show from the previous owners, who was Hive, and so Informa is very proud to be the new owners of the Palm event, we very much look forward to investing some attention in this very exciting market. So we're very happy to be here, and very happy to answer any questions you might have. Thank you. Deploy AI tools to to have better tuning, better programming, right? So the whole element of AI coming into and helping the whole programming and the setup side of right, the whole installation. I think that's getting to be very real, and obviously AI will obviously help us to develop products faster in terms of code development. I think many of the products we do, the software element of that is very high these days. Everything is about interconnected systems. So the AI element of helping development, condensing development cycles faster, right? So, and then we really see this whole trend coming together. So I would say that we're at the early stage, and as industry learns, to better use AI tools, you're going to see a lot more innovation come through. Either it be faster deployments, better sound setups, better, faster programming. So I think there's a lot to discover as we go through the AI journey. Thank you. My one more question. What are the most significant technological innovations in professional AV and lighting in the past years? I could add a few, and maybe I'll ask Jaime to add a few. I think the big movement that we're seeing in AV is the move towards network, right? In the past, AV systems were their own network, right, and very separate from let's say the IT networks. That convergence is happening very fast. So all the products that we see now that are getting launched, they have common protocols such as Dante, where systems can talk to each other very easily. So I would say that the biggest trend that we've seen is convergence of IT and AV, and the transport being very much the IP and open standards like Dante. And on the more creative side, we're seeing immersive as a very big tech coming through. So in terms of experiences to consumers, how do they consume sound? What are the immersive experiences? And there are many use cases.
So I think we would encourage you to drop into the experience, to the Harman Live Arena, just to get an understanding of what immersive could be, right? I think those are the large trends that we see, and having global trends, we see tech standpoint. Similar to what you said, if you go back a couple of years, you needed pieces of software to control different parts of the system. You needed maybe something to control the DSP, something for the speakers, even something apart from the lighting. As you see progress now, everything is on the same platform. One example of many, if you go and look at our ADA. ट्वेंटी थर्ड एडिशन है पालम एक्सपो एवी का। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू 23rd एडिशन ऑफ पाम। ये हमारा जो शो है, आज इन्फॉर्मा ने पहली बार ज्वाइन किया है हाइव इंडिया के साथ शो के लिए। हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी भी है। ये शो उन्होंने फाउंड किया था 25 साल पहले, और ये उनकी एक आइडिया थी, वो डेफिनेटली बताएंगे कि एक जो इवेंट इंडस्ट्री के लिए है, जो प्रो ऑडियो लगता है, प्रोफेशनल ऑडियो, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो ऑडियो लगता है, लाइटिंग लगती है, वो सारे जो नए टेक्नोलॉजीज़ है ये कैसे इंडिया में आ जाए। और ये शो आज सबसे बड़ा शो है जो बढ़ के हुआ है। 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर, 1000 से ज़्यादा देश विदेश से ब्रांड्स आई हुए हैं। सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आपको डिस्प्ले पे है यहाँ पे, जो ये आप इवेंट्स इंडस्ट्री में हो, आपकी शादियों में हो, और कोई इवेंट्स होते हैं लोकल इवेंट, टेम्पल्स में है, आपके अलग अलग जगह पे जो टेक्नोलॉजी आती है डिस्प्ले की, ये सारी यहाँ पे सोर्स होती है। तो ये सारे आके बाय करेंगे, और ये अपने अपने पूरे पैन इंडिया ये टेक्नोलॉजी आप अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में हो या अपने इवेंट्स में हो, ये यूज़ होने वाले हैं। सर क्या संदेश देंगे? ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरा ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के बारे में उनको जानकारी है, और वो उनका विश्वास है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये हर एक एरिया में ज़रूरी है। सबसे बड़ा ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट है एजुकेशन में। सारे क्लासरूम अभी स्मार्ट क्लासरूम हो रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम में स्क्रीन लग रहा है, ऑडियो लग रहा है, प्रो ऑडियो लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। कमाल हो रहा है इंडिया में। सच्चा गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है स्मार्ट क्लासरूम में, तो वो तो छोटी बात है इंडिया के लिए। और बाकी के सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े, नाइट क्लब, डिस्को, रेस्टो बार, ये सारे बैंक, सारे ऑफिस, सारे कंट्रोल रूम, सब जगह पे एवी है। मगर हमारे शो की सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 25 साल पहले शुरू किया था, ये प्रो ऑडियो शो शुरू किया था, वो इंजीनियर जो गाना रिकॉर्ड करते हैं, जो बॉलीवुड में आप जितने भी गाने सुन रहे हो, जो टीवी पे या बॉलीवुड पे, वो साउंड रिकॉर्डिंग का ये शो है। और हम इस शो में सारे साउंड इंजीनियर्स को अवार्ड देते हैं, उसका नाम है आयरा, इंडियन रिकॉर्डिंग आर्ट्स एकेडमी अवार्ड्स। तो ये अवार्ड्स है, जो जूरी है, जितने बॉलीवुड के सबसे हिट ट्रैक्स हैं, उसके जो साउंड इंजीनियर हैं, जो मिक्सिंग करते हैं, जो उसका इफेक्ट्स देते हैं, तो वो साउंड इंजीनियर जूरी बनती है। वो सुनते हैं सब गाने, हमको 1200 से 1400 सबमिशन मिलते हैं। तो साउंड इंजीनियर सब ये शो पे आते हैं अपना नया इक्विपमेंट, नया माइक्रोफोन, नया स्पीकर खरीदने को। और जो म्यूज़िक बजाते हैं वो भी आते हैं नया बड़ा स्पीकर खरीदने के लिए, बड़े से बड़े स्टेज के लिए, छोटे से छोटे गणपति मंडल के लिए। तो वो सब यहाँ पे ही खरीदी होती है। और ये शो में 25,000 लोग आते हैं सारे इंडिया से, और अपना सारा सामान यहाँ पे ही ऑर्डर दे के जाते हैं। सर इंडिया में डिजिटल मार्केट काफ़ी डेवलप हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहें? एक सेकेंड, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं रुपसेन उमरानी, महाराष्ट्र जनसत्ता। सर एक बड़ा टास्क है सर विजुअल के लिए, आने वाले जो युवा है उनको किस नज़र से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आने वाले युवा के लिए ये इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर है।
उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये सब कनेक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, ऑडियो और वीडियो का इंटीग्रेशन करने के लिए अच्छा सा उनको सीखना पड़ेगा। अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। और इंडियन इंजीनियर्स सारी दुनिया मांगती है और सारी दुनिया ट्रैवल करती है वहाँ पे जाके ये सब सुविधा देने के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए। तो डिजिटल के हिसाब से आप पूछेंगे तो डिजिटल में बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी स्पीकर होते थे इतने बड़े, अब एक नया ट्रेंड आ गया, अभी इतने फ्लैट स्पीकर आ गए हैं। अभी पहले था स्टीरियो साउंड, अभी इमर्सिव साउंड हो रहा है, इमर्सिव विजुअल भी हो रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बेटर हो, कि आपको ऐसे लगे कि आप उस दुनिया में हैं इमर्सिव साउंड के साथ और इमर्सिव विजुअल के साथ आप उस दुनिया में हो। तो ये तो टेक्नोलॉजी इंडिया में आम, मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 हर एक जगह पे जो अमीर आदमी है ये सब चीज़ें अपनी शादी पे करता है। अपने जो जो आते हैं लोग शादी पे, उनको एक्सपीरियंस देता है। और वो अपने, मतलब इंडिया में तो आपको मालूम है मनोरंजन तो हमारा पहला धर्म है। सर इनफार्मा के साथ कैसा अनुभव रहा इस बार आप जॉइंट एडवेंचर कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि इनफार्मा पाम के इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है, आज से नहीं पिछले बहुत सालों से उनको इंटरेस्ट है ये इंडस्ट्री में। क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन कंपनी है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी अभी वो इनफार्मा संभाल रहा है। तो उनको बहुत इंटरेस्ट है कि इंडिया में वो अच्छा काम करे इस इंडस्ट्री में, खास करके पाम एक्सपो के लिए, कि पाम एक्सपो को दुनिया भर लेके जाए। उनका ये भी इरादा है कि इंडिया के बाहर भी लेके जाए और इंडिया में इसको और बड़ा करें, और बड़ा करें। जी सर, और एक सवाल सर, ये जो पाम एक्सपो और इंडिया इन मार्केट जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ब्रांड बन चुका है, तो वर्ल्ड के नज़र में आप किस तरह देखते हैं? सारा वर्ल्ड बहुत ही इंडियन मार्केट के बारे में जानता है कि इंडियन मार्केट सबसे बड़ी है। वो स्पीकर जापान में बने, यूएसए में बने, उनको मालूम है सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकेगा। तो उनको मालूम है कि इनफार्मा और पाम एक बहुत पावरफुल 1 + 1 = 11। तो उनको मालूम है कि ये इक्वेशन बहुत खतरनाक है और बहुत दुनिया भर में काम करने वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।